Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last class, we have completed the commerce part. Now in this class, we'll be starting a new topic, that is business risk. This topic is the last topic of your first chapter. Okay. Now students, before telling you about this topic, we'll just revise the commerce in short. What was commerce? कल क्या किया था हमने? Commerce refers to all those activities which help in distribution of goods and services from producer to consumer. ये वो सारी activities हैं जो कि help करती हैं goods को producer से consumer तक पहुँचाने में. Like people, middlemen, wholesalers and retailers, ये help करते हैं. Second is transportation. Can you imagine without transportation to distribute your goods? No. The transportation is important. Third is warehousing. Warehousing is also important. जहाँ पे आप goods store करते हो and as soon as the demand arises in the market, the goods are supplied from the warehouse. Then you have is advertisement. Without advertisement, you cannot इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि आप सबके पास घर घर जाके तो कन्विंस नहीं कर सकते हो, राइट. द सेम वे इंश्योरेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज every business involves risk, and in order to cover risk you have to take insurance. Okay, and then you have this banking facility which helps you to do the daily transactions. आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो. बैंकिंग के बिना यू कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनी बिजनेस, राइट. सो दीज आर द फैसिलिटीज़ विच कॉमर्स प्रोवाइड्स यू एंड इट हेल्प्स द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, राइट. देन वी हैव डन दैट कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू टू, ट्रेड and second is aids to trade. What is trade? Trade is buying and selling of goods and services. Goods and services को खरीदना बेचना क्या होता है? Trade. There are two types of trade, internal trade and external trade. Internal trade is one which is carried out within the geographical boundaries of the country. जो trade अपनी country के अंदर हो उसे क्या बोलते हैं? Internal trade. And जो trade country के बाहर हो, that is known as external trade. In external trade, foreign countries are also involved. Okay. Now internal trade, they are of two types, wholesale trade and retail trade. Wholesale trade क्या होता है? Wholesalers वो होते हैं जो bulk quantity में producer से खरीदते हैं and they sell it to the retailers. Retail trade is one in which the retailer buys in smaller quantities from wholesalers and sell it to the final consumers who will be finally consuming it. Okay, now coming to external trade, there are three types of external trade. What are they? The first is import, export and entrepot. Import is buying goods from foreign country is import. Export, selling goods from our home country to foreign country. हम यहाँ से कुछ foreign countries sell कर रहे हैं, that is export. Then you have is entrepot. What is entrepot? Entrepot is that you are buying from some country and you are selling to some another country, that is entrepot. Okay, so ये क्या हुआ? ये trade का part हो गया. Now coming to aids to trade. Aids to trade क्या होता है? ये वो activities हैं जो हमें trade करने में help करती हैं, जैसे transportation, warehousing, advertisement, insurance, banking. ये वही facilities हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं. तो इनके बिना, इन activities के बिना you cannot do any trade. तो इसे क्या बोला जाता है? You can call it as aids to trade or you can also call it as auxiliaries to trade. Okay, so this is what we have done in our last class. Now in this class, as I told you, our new topic is business risk. This topic also we have actually discussed in earlier classes also in very short. तो आज हम इसे डिटेल में करेंगे. Okay. Now as we have discussed earlier that every business involves risk.
ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं होगा जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। कहीं पे मॉडरेट रिस्क है, कहीं पे लो रिस्क है, कहीं पे हाई रिस्क है, बट एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय रिस्क। रिस्क होता क्या है? बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क इज probability of loss or inadequate profit due to unexpected events which are not under the control of a businessman. Probability of loss, chances of loss, बिजनेस को लॉस हो जाए, लॉस होने के चांसेस हैं, या फिर प्रॉफिट कैसा कमाने के चांसेस हैं? कम कमाने के चांसेस हैं। और ऐसा क्यों हो कि बिजनेस कम प्रॉफिट कमाए या लॉस हो जाए? ऐसा क्यों हो? बिकॉज ऑफ सम अनसर्टन सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए फ्यूचर में जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाए, या प्रॉफिट तो हो पर कम प्रॉफिट हो। एंड जो भी सिचुएशन ये अराइज होती हैं, जो भी ये अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन सिचुएशंस, अनफेवरेबल सिचुएशंस अराइज होती हैं, ये बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होती हैं। दैट इज़ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग लॉस इन द बिजनेस। वाई? बिकॉज ऑफ सर्टेन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो बिजनेसमैन ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, प्रिडिक्ट नहीं किया था, फोकास्ट नहीं किया था कि अच्छा मेरे बिजनेस में ऐसा हो सकता है। उन्होंने कभी भी ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया था। ये वो अनसर्टेन सिचुएशंस है जिनकी वजह से कभी कभी हमारे बिजनेस को लॉस हो जाता है, एंड इस पे बिजनेसमैन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, एंड दैट इज़ नोन एज बिजनेस रिस्क। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आर वी एन एस्ट्रोलॉजर? क्या हम सब एस्ट्रोलॉजर हैं कि हम फोकस कर दें कि हाँ ऐसे ही होगा? या एस्ट्रोलॉजर भी क्या एकदम एक्यूरेटली आपका फ्यूचर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। द सेम वे द बिजनेसमैन कैन ऑल्सो नॉट adequately forecast the future. So these uncertain situations at times they are unfavorable for our business, and उसका रिजल्ट क्या हो जाता है? उसका रिजल्ट ये हो जाता है कि our business has to suffer loss or they get inadequate profit. Okay, but now the question arises is that what are the reasons of business risk? Risk कौन से होते हैं या क्या कॉजेज़ होते हैं बिजनेस रिस्क के? फर्स्ट कॉज इज नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ इंक्लूड्स ऑल द कॉजेज़ दैट आर रिलेटेड टू नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, राइट, हैवी रेनफॉल। इनकी वजह से जो लॉस होता है दैट कम्स इन नेचुरल कॉजेज़। नाउ कैन यू कंट्रोल इट? क्या आप अर्थक्वेक को कंट्रोल कर सकते हो, फ्लड को कंट्रोल कर सकते हो, हैवी रेनफॉल को कंट्रोल कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट डू इट। फ्यू ईयर्स बैक भुज में आपने देखा इतना अर्थक्वेक आया दैट द इंटायर भुज सफर्ड। वहाँ पे कितना बिजनेस लॉस हुआ। इनफैक्ट वहाँ पे तो कितनी लाइफ्स चली गई। द सेम वे नेपाल ने भी अर्थक्वेक की वजह से बहुत सफ़र किया। The same way उत्तराखंड because of that heavy rainfall and flood, right? तो ये सब क्या है? बिजनेस में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। हम इसका कुछ नहीं कर सकते। सो दैट आर नेचुरल कॉजेज़, राइट? ये वो कॉज हैं जो कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से होता है, एंड दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट और दे हैव अ unfavorable impact on the businesses, right? Now coming to the second one. Second is human causes. Human causes includes the losses which are incurred by carelessness, negligence of human being. जो human being की वजह से losses होते हैं they come in human causes, right? क्यों ह्यूमन बीइंग की वजह से लॉसेस हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज़। जो वहाँ काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में वो बहुत केयरलेस हैं। दे आर नॉट हैंडलिंग द मशीन्स प्रॉपरली, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली, दे इंडल्ज इन मैल प्रैक्टिसेस। मैल प्रैक्टिसेस मीनिंग वो कंपनी के अगेंस्ट ऐसे एक्शंस कर रहे हैं, ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं विच आर अगेंस्ट द कंपनीज बेनिफिट। वो फ्रॉड कर रहे हैं,
राइट. सिमिलरली यू मस्ट हैव हर्ड कि लेबर्स, पूरा ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पे चला गया, राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, स्ट्राइक पे चला गया. फॉर सो मैनी डेज द फैक्ट्रीज आर शट डाउन बिकॉज ऑफ दीज स्ट्राइक्स. ये दंगों की वजह से, राइट्स की वजह से. राइट. तो इन सब का किस पे इम्पैक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली आपके बिजनेस पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही. किसी एम्प्लॉय ने ट्रेड सीक्रेट, जो आपके ट्रेड का सीक्रेट है, वो रिवील कर दिया, किसी और कॉम्पिटिटर को बता दिया, तो इससे क्या होगा? आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. रिस्क बहुत इन्वॉल्व है. राइट. इन सब रीजन्स की वजह से क्या होगा? यू हैव टू सफ़र द लॉस. सो दीज आर द ह्यूमन कॉजेज which are incurred because of carelessness, negligence of human beings, of employees who are working in your employees who are working in your organization, right? And riots की वजह से, strikes की वजह से, ये जो भी loss होते हैं, they all come in human causes. And who will have to suffer? सबसे ज़्यादा आपका business ही suffer करेगा. Okay, students, the next cause is economic causes. The loss which is incurred because of change in market conditions, they all come in economic causes. जो भी लॉस बिजनेस को होता है, इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट की जो कंडीशन है चेंज होने से, वो सब किस में आ जाते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज में. लाइक फॉर एग्जांपल चेंज इन डिमांड ऑफ कस्टमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ गए, फैशन में चेंजेस आ गए, प्राइस फ्लक्चुएशंस होने लगे. इसकी वजह से जो लॉस होते हैं, दे ऑल कम इन इकोनॉमिक कॉजेज. लाइक फॉर एग्जांपल अर्लियर दिस बेल बॉटम जीन्स, ये जो पैरेलल बेल बॉटम जीन्स होती है अमिताभ बच्चन स्टाइल, वो बहुत फैशन में थी. क्या आजकल आप वैसी जीन्स देखते हो? क्या आप वो वेयर करते हो? नो, वी डोंट वेयर इट. अब क्या चल रहा है? अब स्किनी जीन्स चल रही हैं, टाइट फिट जीन्स चल रही हैं, बट वी डोंट वेयर दोज पैरेलल जीन्स. इमेजिन द बिजनेसमैन जिनके पास वो स्टॉक था, जब वो चेंज आया उस टाइम वो स्टॉक बहुत था, तो क्या हुआ? वो सब स्टॉक क्या डिमांड में रहेगा? नहीं रहेगा. क्या कस्टमर्स परचेज करेंगे? नहीं करेंगे. अब वो क्या करेंगे? दे विल बाय मोर ऑफ द स्टॉक विच इज़ इन फैशन. अब जो क्लोथ्स ट्रेंड में हैं, फैशन में हैं, अब वो कंज्यूम करेंगे, वो वेयर करेंगे, वो परचेज करेंगे. राइट. तो अब वो क्या हो गया? जो पहले का स्टॉक है वो क्या हो जाएगा? डेड स्टॉक. तो ऐसे फैशन चेंज होने की वजह से भी बिजनेसमैन को बहुत लॉस हो जाते हैं. राइट. जो उसने कभी पहले सोचा नहीं था कि एकदम से फैशन चेंज हो जाएगा एंड ही हैज़ टू सफ़र लॉस. राइट. ये सब अनएक्सपेक्टेड लॉस है. क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. द सेम वे लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए. अभी तो प्रोडक्ट ए बहुत कंज्यूम करते थे, अब उनका टेस्ट चेंज हो गया. देयर इज़ सम अनदर प्रोडक्ट दैट हैज़ कम इन द मार्केट एंड दे हैव स्टार्टेड मोर ऑफ कंज्यूमिंग दैट बी प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट ए तो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं एक्चुअली. तो क्या होगा? बिजनेसमैन विल हैव टू सफ़र ह्यूज लॉस. Right. Last one, that is physical causes. Now physical causes are related to the loss which is incurred because of change in technology. First reason क्या है? टेक्नोलॉजी में चेंज होने से जो लॉस होता है वो सब किस में आ जाता है? फिजिकल कॉजेज में. लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्लियर वी यूज टू यूज़ दोज डायल पैड फोन्स. आज से कुछ साल पहले हम सबके पास शायद डायल पैड फोन्स थे. Now I think just 10% or 20% people use those dial pad phones. Everybody has a touch screen phones in their hands. अब टच स्क्रीन फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं. फ्यूचर में हो सकता है कि टच स्क्रीन फ़ोन्स भी आउटडेटेड हो जाएं. Some new technology comes in. And because of this change in technology, a businessman has to suffer a loss. क्यों? क्योंकि उनके पास स्टॉक मेंटेन रहता है. अब वो स्टॉक क्या होगा? वो तो डेड स्टॉक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नाउ द डिमांड ऑफ द कस्टमर हैज़ चेंज्ड. वाई विल अ कस्टमर बाय एन आउटडेटेड प्रोडक्ट जबकि न्यू टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. राइट. द सेम वे
Earlier, how we used to listen to the music, कैसे म्यूज़िक सुनते थे? We used to have those gramophones. फिर क्या आया? ग्रामोफोन भी आउटडेटेड हो गया. Then we used to have those tape recorders, we used to have those cassettes, उसमें डालते थे and we used to listen to music. Then that also became outdated. Then CDs came, DVDs came, after that through pen drives, and now I think everybody directly listens it through YouTube. So see how the technology has changed and how the products have become outdated. कैसे वो outdated बनते जा रहे हैं. तो businessman को कहीं ना कहीं because of change in technology has to suffer the loss, right? So the first reason in physical causes is change in technology. Another is because of mishappenings that may occur in the factory or industries. ये जो mishappenings हो जाती हैं, accidents occur हो जाते हैं, like fire लग गई एकदम से, या boiler burst हो गया, या gas leakage हो गया. इसकी वजह से जो loss होता है, they all come in physical causes. Right. Now students, we'll just revise it once again. So that means risk के बहुत सारे reasons होते हैं and there are basically 4 reasons that we'll be learning here. First is natural causes, that happens because of natural calamities like floods, earthquake, and a businessman do not have any control over it. Another is human causes. Human causes, the loss incurred because of negligence of human beings. Negligence बोल सकते हो, और the easier word is carelessness. Carelessness of human beings or employees. Next is economic causes, the loss which is incurred because of change in market conditions. Change in market conditions. Demands change हो गई, प्रेफरेंसेस, टेस्ट चेंज हो गए कस्टमर्स के, फैशन चेंज हो गया, प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहा है, उसकी वजह से लॉस हो रहा है. सो इट ऑल कम्स इन इकोनॉमिक कॉजेज. लास्ट इज फिजिकल कॉजेज, द लॉस विच इज इंकर्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी. चेंज इन टेक्नोलॉजी because of some mishappening, you can write accidents at workplace. इनकी वजह से जो लॉस होता है, they all come in physical causes. Okay students, hope you must have understood this topic. Students, in the same topic business risk, we have a subtopic that is nature of business risk. Business risk का nature कैसा होता है. The first is risk arise due to uncertainties. This we have done. बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होता है, रिस्क क्यों अराइज होता है, लॉस होने के चांसेस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट मे अराइज इन द फ्यूचर. कोई ऐसा इवेंट हो जाए विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, हमने सोचा नहीं था और एकदम से हो जाए, एंड जिसका हमारे बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट पड़े, अनफेवरेबल, राइट. तो रिस्क क्यों अराइज होता है, क्योंकि कुछ ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स अराइज हो जाते हैं जिसकी वजह से रिस्क अराइज हो जाता है और हमारे बिजनेस को एट टाइम्स लॉस भी सफ़र करना पड़ता है. सो इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनफेवरेबल इवेंट्स, जिसका ऑब्वियसली बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, अनफेवरेबल. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, risk is an essential part of business. As I had told you earlier many times, मैंने बहुत बार बोला है that without risk you cannot carry out any business. हर business में risk involved होता ही है, चाहे वो natural causes हो, natural calamities की वजह से risk हो, या फिर human causes की वजह से carelessness, employees की carelessness की वजह से loss हो जाए, या फिर फिज़िकल कॉजेज़ की वजह से लॉस हो जाए, या फिर मार्केट कंडीशंस जो चेंज हो जाती हैं उसकी वजह से लॉस हो जाए. तो ऐसे रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं आपके बिजनेस में. वी कैन नॉट अवॉइड रिस्क, बट येस वी टू सम एक्सटेंट हम उस रिस्क से बच सकते हैं. कैसे बच सकते हैं? बाय टेकिंग इंश्योरेंस.
So risk is an essential part of business. Third is degree of risk depends on nature and size of business. रिस्क कितना बड़ा है, ज़्यादा रिस्क है, कम रिस्क है, वो किस पे डिपेंडेंट है? इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स आपका बिजनेस कैसा है, आप बिजनेस कर किस चीज़ कर रहे हो. सपोज आई एम इन फैशन इंडस्ट्री, मैं विमेन के गारमेंट सेल करती हूँ, फैशन इंडस्ट्री में हूँ. अब एज आई हैड टोल्ड यू कि फ़ैशन कीप्स ऑन चेंजिंग एंड बहुत जल्दी चेंज होता है, तो यहाँ पे लॉस होने के बहुत चांसेस हैं. क्यों? क्योंकि फ़ैशन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, लोगों की टेस्ट चेंज हो जाते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं. क्या आप कोई पुराना फैशन का क्लोथ्स ख़रीदना चाहोगे? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा, राइट. तो अगर मेरा कुछ बिजनेस फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे क्या चांसेस हैं? लॉस होने के बहुत चांसेस है, वहाँ पे रिस्क बहुत है. बट अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इतना जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे जनरल स्टोर है, ये वो आइटम्स है जो लोग कंज्यूम करते ही हैं ऑन डेली बेसिस, तो वहाँ पे रिस्क कम इन्वॉल्व है. Another is size of business. Obviously, if your size of business is large, huge, वहाँ पे लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, एंड साइज़ कम है तो वहाँ पे लॉस होने के कम चांसेस हैं. तो रिस्क किस में ज़्यादा इन्वॉल्व है? जिसमें बिजनेस का साइज़ ह्यूज है, एंड किस में कम इन्वॉल्व है? जहाँ पे बिजनेस का साइज़ कम है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, राइट. Now coming to the last one, profit is the reward for bearing risk. Now it is said that आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे बिजनेस में, more you take risk, more chances are of getting profit. No risk, no gain. क्या बोला जाता है? We say that no risk, no gain. That means if you will not take any risk in your business, gain होने के, profit कमाने के chances बहुत reduce हो जाते हैं, right? So profit is the reward for bearing risk. Okay, so we'll just revise it once again. The first one is कि risk क्यों arise होता है? Because of uncertainties, unexpected events. Second is that every business involve risk. चाहे कैसा बिजनेस हो, रिस्क तो होता ही है. थर्ड इज़ दैट द रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कर कैसा रहे हो उस पर डिपेंडेंट है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल साइज ऑफ बिजनेस. एंड द लास्ट इज दैट इफ यू नॉट टेक एनी रिस्क इन योर बिजनेस, देर आर चांसेस दैट यू विल नॉट अर्न दैट मच ऑफ प्रॉफिट. आप जितना है उतने में ही खुश रहोगे. तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, बिजनेस बढ़ाना है, so you have to take risk. Okay, I hope students you must have understood this topic, and by this we have completed our first chapter. Thank you.